Welcome to inauguration of Drishti Eye Hospital. And Dr. Hemant is here and he is practicing since 2007. I would like to give information about Dr. Hemant Chasia, Dr. Yash Parman, and Dr. Srushti Naik. Of this ASG Drishti Eye Hospital. Would like to give you a small background about myself. I have started practice in 1998 elsewhere in Malad, but I started in Virar in 2007, and it was in a very small clinic nearby only, and started with very few equipment and all, and as we gradually grew into practice and we started acquiring more and more equipments, but somewhere at the back of my mind I had this feeling that we are not practicing up to our potential. So we have joined hands with Envision Eye Hospital and ASG Group, and with their cooperation and help, we are starting with this huge center, and we are hoping to cater to all kinds of patients, and we have a wide range of equipment and services available here, right from cataract to retina to oculoplasty, pediatric ophthalmology, and glaucoma, cornea. We'll be serving all kinds of patients, and all kinds of diseases will be managed here. And equipment wise, we have acquired almost everything possible in ophthalmology here. So, and we have probably the first laser in this side of Borivali, I guess, and it's a very
high quality laser with very high speed and very accurate results with German technology, and hoping to do a lot of refractive work here also. And we have many visiting surgeons. We have Dr. Yash Parmar for retina. Dr. Srushti Naik is also anterior segment surgeon. We have Dr. Ankita, Dr. Saumil Seth will be visiting for glaucoma and cornea for us. And Dr. Kamlesh Gupta will be there for oculoplasty as well. Pediatric Dr. Kesarwani will be coming. So probably everything under the sun for ophthalmology will be available at this center, and hoping to do good work for the people of Virar. They don't have to travel far for everything now, as it used to happen earlier. We used to refer a lot of patients to Bombay side, and now with this center we are hoping that we will not have to send anyone out of this center for any kind of treatment. So looking forward to starting this venture. I'd like to give over to Dr. Yash Parmar, for retina surgeon. Thank you. Yeah, good morning everyone. Welcome to Dristy Eye Clinic. I'm Dr. Yash Parmar. I'm a retina surgeon, and I also retina, uvea and ROP. So I have 3 specialties. I have an experience of 9 years. I've done my education from Nair Hospital, Mumbai Central, and I've done my retina fellowship from Narayan Netranay, Bangalore. And after that, I've been working at Nair Hospital as a professor, teaching residents and fellows in retina. During my time at Nair Hospital, I used to get a lot of patients from Virar, and they had to travel all the way to Mumbai Central and Bombay side, जैसे सर ने बताया कि उनको उस तरफ आना पड़ता था. मैं फाइल्स देखता था, डायग्नोसिस हो जाता था, सर्जरी के लिए वहाँ आना पड़ता था क्योंकि इक्विपमेंट्स प्रॉब्ली नहीं थे वहाँ इस तरफ इतने. बट वी हैव कम विथ कंप्लीट ओटी फॉर रेटिना. यहाँ रेटिना की हर टाइप की कॉम्प्लेक्स सर्जरीज भी होगी. आई विल बी अवेलेबल फुल टाइम हियर, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट 2 इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेस, जो 2 इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेस जिसकी अवेयरनेस और आपको भी थोड़ा इफ़ यू कैन अवेयर पीपल अबाउट इट. एक डायबिटीज़ रिलेटेड आँखों की प्रॉब्लम जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं. आज इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल है पूरे वर्ल्ड का. हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स इंडिया में हैं, और इट इज़ अ साइलेंट किलर इन ऑल फॉर्म्स. आपको डायबिटीज़ बढ़ जाता है, पता नहीं लगता, कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके बाद पता लगता है कि किडनी ख़राब हो गया, पैर में गैंग्रीन हो गया. वैसे आँखों में ब्लीडिंग हो सकती है डायबिटीज़ की वजह से, और अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो तो ब्लाइंडनेस आ सकती है. और बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे जो अपनी दोनों आँखें खो चुके हैं, दे बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड. उसमें कुछ यंग पेशेंट्स भी होते हैं जिनको टाइप 1 डायबिटिक बोलते हैं. सो एवरी डायबिटिक शुड गेट his or her eyes screened every 6 months. रूटीन चेकअप इज़ अ मस्ट, करना ही चाहिए. दूसरी चीज़ें, और अगर कुछ लगा तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर ट्रीटमेंट, अर्लियर द बेटर. दूसरी चीज़ इज़ रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी. रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, 1 महीने से छोटे जो होते हैं बच्चे. प्री मैच्योर मतलब जो पूरे 9 महीने में पैदा नहीं हुए, जो 8 महीने से अंदर पैदा होते हैं, या 2 किलो से कम जो बच्चे होते हैं, उनमें ये ROP नाम की प्रॉब्लम, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी जो प्रॉब्लम है, वो होने के चांसेस होते हैं. ये पोटेंशियली ब्लाइंडिंग डिजीज़ है. आज जब हम देखते हैं कि बहुत सारे यंग लोग स्टिक लेके चल रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों का ROP की प्रॉब्लम रही होगी जो टाइम पे डिटेक्ट नहीं हुई और वो ब्लाइंड है. अगर इन बच्चों का सही टाइम पे हम स्क्रीनिंग करें, ये बीमारी डिटेक्ट हो जाए, तो एक सिंपल लेज़र या इंजेक्शन से उनकी लाइफ टाइम के लिए विजन बच जाएगी, और ये एज एनी अदर नॉर्मल चिल्ड्रन अपनी लाइफ लीड कर सकते हैं. सो विल बी प्रोवाइडिंग ROP रिलेटेड ट्रीटमेंट ऑल्सो, स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट एवरीथिंग, और रेटिना रिलेटेड सारा सोल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड. थैंक यू. Give to Dr. Srushti Naik. She's an associate here in this hospital. Good morning, everyone. I'm Dr. Srushti Naik. I completed my post-graduation from Vedanta Medical Institute, Dahanu. Then I have been working in Shatabdi Hospital, Kandivali. Now I am working in AHG Dristy Eye Hospital. मैं यहाँ कैटरैक्ट डायग्नोसिस करना और उसका ट्रीटमेंट देना, उसके बारे में बताती हूँ. उसके अलावा ग्लोकोमा है, स्क्विंट है,
जिसके एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे सब हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सब मैं कर पाती हूँ अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर हेमंत सर एंड डॉक्टर यश सर। थैंक यू। विरार में शायद इस तरह का हॉस्पिटल अभी तक नहीं है जहाँ पे सब एडवांस स्टेज की चीज़ें अवेलेबल जी। है, तो कितना कुछ बदलाव आएगा और कितना कुछ फायदेमंद रहेगा यहाँ के लोगों के लिए विरार में? जी हमारे पास डायग्नोसिस और एज वेल एज ट्रीटमेंट के लिए सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी सब चीज़ों में है। इवन कैटरैक्ट, रेटिना, जैसे आपको बताया लेज़र। कैटरैक्ट में हम लोग फेको एमल्सिफिकेशन एक मेथड होता है जिसमें स्टिचेस नहीं लिया जाता है, तो बिना स्टिच का वो कैटरैक्ट को इमल्सिफाई करके लिक्विड बना के हम निकाल देते हैं। और जो लेंसेज हम यूज़ करते हैं वो सबसे बेस्ट लेंसेज पॉसिबल हम ऑफ़र कर सकते हैं। मतलब आजकल बाईफोकल, ट्राईफोकल बोलते हैं जिसमें दूर का, पास का, इंटरमीडिएट विजन सब दिखता है बिना चश्मे की सहायता के। तो उस प्रकार की हम लोग सर्विसेज कैटरैक्ट से रिलेटेड बता सकते हैं। रेटिना का जैसे डॉक्टर यश ने बताया, हमारे पास ग्रीन लेज़र है, आर्गन लेज़र है, डायोड लेज़र्स है, तो आरओपी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो ये सब जो मशीन्स हैं वो ज़्यादातर आई हॉस्पिटल्स में आपको नहीं दिखती है क्योंकि बहुत कॉस्टली होती है और सबके पास अवेलेबल करना मुश्किल होता है। तो ये सेंटर में वो सब इक्विपमेंट जो रेटिना के लिए है वो भी अवेलेबल है। लेज़र जैसे मैंने आपको बताया लैसिक, तो चश्मा जिसको आजकल टीनेजर से लेके इवन 45-50 तक लोग चाहते हैं कि हम चश्मा नहीं यूज़ करें, तो उनके लिए लैसिक हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, जो इस साइड बोरीवली के इस साइड में किसी के पास नहीं है, हमारा फर्स्ट है। वो भी हाई स्पीड लेज़र है, टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस्ड है वो। ग्लोकोमा है, कॉर्निया है, बाकी सब चीज़ों में भी इस प्रकार पेरीमेट्री है हमारे पास। स्पेकुलर माइक्रोस्कोप करके होता है, हम जो कॉर्नियल एंडोथेलियल काउंट करते हैं वो कैटरेक्ट सर्जरी या कॉर्निया की कोई भी सर्जरी होती है उसके पहला स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी मशीन हमने एक्वायर किया है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजिकली जो भी एडवांस्ड है मशीन ज़रूरत है डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वो हम यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब A to Z आप यहीं पे इसी फैसिलिटी में जी, सब जी। कोई आएगा जिसको आपको प्रॉब्लम है वो जी, हम यहीं पे क्योर कर सकते हैं, हम किसी भी जगह भेजने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ और कहना चाहेंगे डायबिटीज वाले लोग कई बार बहुत एंड स्टेज पर आते हैं आपके यहाँ जी, पे, जी, जी। जब आपको उनके चाहे कैटरेक्ट के ऑपरेशन के जी, जी, जी। वो कितना इजी डिफिकल्ट होता है और क्या मैसेज देना चाहिए उन लोग को ताकि जी, regular आए? डायबिटीज़ के बारे में जो भी है मैं डॉक्टर यश से रिक्वेस्ट जी। करूँगा, वो बताएंगे आपको। डायबिटिक पेशेंट बहुत लेट आते थे। हाँ, बहुत पेशेंट्स हम देखते हैं जो लेट एंड स्टेज में आते हैं, इसलिए एक तो शुगर कंट्रोल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरा रूटीनली चेकअप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वही चीज़ हम अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो एक सिंपल इंजेक्शन या लेज़र से काम हो सकता है, सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़े। पर बात जब सर्जरी जो एंड स्टेज में पहुंच जाती है, स्टेज 5 में, उसमें पूरी आँख में ब्लीड हो जाता है, पूरा आँख जो गोला है पूरा ब्लीडिंग से भर जाता है, तब उसको ऑपरेट करना हमारे लिए भी मुश्किल है, पेशेंट के लिए भी मुश्किल है, चैलेंज बढ़ जाता है। तो एटलीस्ट 6 मंथली नहीं तो ईयरली चेकअप इज़ अ मस्ट। और किस तरह से आपको सर्वेलेंस जैसे आपने कहा बहुत ज़रूरी है, विरार के लोगों को क्या कुछ सुविधा आपकी तरफ से मिलने वाली है और क्या एडवांस चीज़ें जो यहाँ पे है जो कहीं और अभी तक नहीं है इस सिटी में अगर बात कहा जाए तो? हाँ, जैसे इन्होंने बताया जो रेटिना का एवरी 6 मंथ्स आना चाहिए, तो हमारे पास OCT मशीन है जिससे इसकी जो अर्ली स्टेज भी होती है, जैसे पहले के ज़माने में सिर्फ एक लाइट मार के देखा करते थे फंडस को, तो अभी वो नहीं, हम OCT से उसका जो अर्ली स्टेज है जो दिखने वाला भी नहीं है लाइट मार के, उससे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो अर्ली स्टेज में अगर होता है तो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इंजेक्शंस दे के या कुछ लेज़र्स करके उसका इलाज कर सकते हैं। तो ये हम पेशेंट्स को एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि 6 मंथली करें, सब काम छोड़ के, डायबिटिक के जो पेशेंट्स और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, सब काम छोड़ के हर 6 महीने में एक बार विजिट करेंगे ना, तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत इजी है और उनकी आंख बचाना बहुत इजी हो जाएगा हमें। आपका मेरा सवाल था जी। एक लास्ट पूछ लेता हूँ। सर आपके यहाँ पे मैंने देखा आंखों का चश्मे भी अवेलेबल है, आई थिंक उसके बारे में थोड़ा बताइए, कई लोग बाहर सजेस्ट करते हैं कि बाहर जाके बनाइए। तो स्टूडेंट हमारे जो मशीन हमने एक्वायर किया है उसकी स्पॉट साइज़ बहुत छोटी है और 0.5, और उसकी स्पीड बहुत हाई है 500 हर्ट्ज़ की।
तो इससे क्या होता है कि जो इवन ज़्यादा नंबर भी जब होते हैं तो बहुत कम समय में उसका लेज़र हो जाता है। कई बार पेशेंट अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि इसमें कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, कुछ पट्टी भी नहीं की जाती बाद में, तो पेशेंट थोड़ा एंक्शस रहते हैं कि हमारे आंखों में लेज़र हो रहा है। तो जब हाई स्पीड लेज़र जब किया जाता है तो बहुत कुछ सेकेंड्स में ही उनके हाई पावर भी निकल जाते हैं, तो पेशेंट की एंग्जाइटी भी बहुत जल्दी कम हो जाती है, पेशेंट को तुरंत हम बाहर ले जा सकते हैं। तो ये एक बहुत खासियत है इस मशीन की जो हमने एक्वायर किया है। सर आपने बताया जी। कि आँखों की समस्याओं का एक तो सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज जी, और दूसरा कारण स्क्रीन की प्रॉब्लम जो स्क्रीन टाइम, यस, जी। वेरी करेक्ट। इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं जो इतनी तेजी से लोगों के आंखें प्रभावित हो रही हैं और उनके लिए जो है मतलब अपने यहाँ क्या सुविधा उपलब्ध है और उसको ठीक करने के लिए? जैसे आपने बताया स्क्रीन टाइम जब बढ़ जाता है तो आंखों में एक ड्राइनेस होती है उस प्रकार से, तो ड्राइनेस का इलाज करना भी हमारे यहाँ पॉसिबल है। हम लोग MGD करके एक कंडीशन आती है, उसकी एक लेज़र्स आती है, वो भी हम लोग अवेलेबल रख रहे हैं यहाँ पे। तो उससे क्या होता है कि जो आंखों में सिक्रीशंस बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ हाई स्क्रीन टाइम, वो हम कोशिश करते हैं कम करना है, या उनकी ड्राइनेस कम हो जाती है, आंखों में जलन कम हो जाती है। पेशेंट को भी अपना ध्यान रखना चाहिए, स्क्रीन टाइम लिमिट रखना चाहिए, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने चाहिए। जब कंप्यूटर से देखते हैं, जब ज़्यादा समय तक मोबाइल देखते हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक्स होना चाहिए, हर आधे घंटे में, 1 घंटे में। और उसका ट्रीटमेंट हमारे पास है, वो MGD का जो ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो लेज़र भी अवेलेबल है हमारे पास। इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से इतनी तेजी से लोगों की आंखें खराब जैसे ब्लड प्रेशर भी एक कॉमन कारण है, डॉक्टर ने बताया आँख में ब्लीड हो सकती है, खून जमा हो सकता है। और दूसरी चीज़ है लोगों की लाइफस्टाइल। आजकल लोग बहुत लेट सोते हैं, आंखों को रेस्ट कम मिलता है, डाइटरी चेंजेस है, लोग समय पे खाना नहीं खा पाते बिकॉज ऑफ वर्क एंड ऑल। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आंखों को डेफिनेटली अफेक्ट करती है। तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपना खुद का पहले ध्यान रखें। Thank you. वेलकम। सर ये कितना इम्पैक्टफुल रहेगा विरार पालघर रेसिडेंट्स में, कितना अफोर्डेबल रहेगा ये ट्रीटमेंट? डेफिनेटली अफोर्डेबल रहेगा। इवन बिफोर वी स्टार्टेड दिस बिग प्लेस, हमारा एक पॉलिसी रहता था कि हम किसी को पैसों की वजह से हम वापस नहीं भेजते थे। जितना हमको कॉस्ट इफेक्टिव पॉसिबल है उतने कॉस्ट में हम पेशेंट को करके दे सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे ऐसे बड़े सेंटर्स में यूजुअली प्राइसेस बहुत हाई रहते हैं, तो हमारे पास सब केटर करते हैं। जैसे मैंने बताया मल्टीफोकल लेंसेज से लेके मोनोफोकल लेंसेज तक सब अवेलेबल है। तो कई जगह पे कितने चैरिटेबल्स में भी जो रेट्स में करते हैं उससे भी हम लोग कम में कर सकते हैं, ऐसे पॉसिबल है यहाँ पर। क्योंकि सर यहाँ पे पालघर विरार एरिया में जी लो इनकम जी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ग्रुप है या इसीलिए मैं ज़्यादा बता- आपको वो मिलेंगे। जी जी जी, तो हमने हमारी फ़ीस भी वैसे ही रखी है, हमने कुछ 1000 रुपीज़ कंसल्टिंग नहीं रखा है, तो मिनिमम फीस है, अफोर्डेबल है और प्रोवाइडिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस। बेस्ट एट वेरी अफोर्डेबल रेट्स। मतलब ऐसे कोई फीस नहीं दे पा रहे इस वजह से वापस तो यहाँ से नहीं जाएगा ऐसे। सर हाँ, आजकल बॉडी में ना कई लोगों को विटामिन की प्रॉब्लम होती है, जी, तो क्या कोई विटामिन की कमी आंखों में इफेक्ट डालती है? विटामिन ए है, ई है और डी है। ये विटामिन की कमियों से आंखों में ड्राइनेस, आंखों में थकावट, चश्मा आने के चांस, बच्चों में अगर नहीं लेते विटामिन्स प्रॉपर्ली, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो आंखों के नंबर उनके आने के चांसेस है। एडल्ट्स में आंखों में ड्राइनेस जल्दी होने के चांसेस हो जाते हैं, उनका नंबर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, हर एक मील के साथ सैलड्स लेना चाहिए, कैरेट्स है, रेडिश है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट जो भी होते हैं वो लेने से आंखों की सेहत हमेशा अच्छी रहती है। डॉक्टर, डायबिटीज के कारण किसी की आंख की रोशनी चली जाती है, जी, तो उसकी रोशनी वापस आ सकती है कि नहीं? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है आपके तो यहाँ? मैं डॉक्टर यश से रिक्वेस्ट करूँगा ये जवाब दें इनका। जी सर, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है एंड बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ऐसा कोई डायबिटीज़ रिलेटेड मरीज़ नहीं है जिसको मुझे बोलना पड़ेगा कि आप यहाँ नहीं हो सकता, कहीं और दूसरे जगह जाके दूसरी अस्पताल में कीजिए। अगर वो कहीं हो सकता है तो अगर कहीं हो सकता है तो यहीं पे भी हो सकता है। सो वी हैव द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी टू डील विद इट। बहुत सी जगह वो दिखाते हैं, मतलब आँख के डॉक्टर के यहाँ बोलते हैं आप देख नहीं सकते हो, तो तो एकदम ऐसा क्या कारण है? उसका कोई ये है कि उसका वापस रोशनी आ जाए? सर्जरी, आँखों पर कोई ऐसा है? सर्जरी एक उपाय है उसके लिए। हाँ, सर्जरी करके उसको सर्जरी ठीक करके हो सकता हो है। सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कराने के बाद मुझे अब इनका
इतने लोगों को दिखाई नहीं देता है। जी आखिर ऐसा क्या है तो उसमें होता है कि दिखाई नहीं देता है? जी, तो मोतिया का ऑपरेशन होने के बाद एक बार लेंस बिठाया जाता है आंखों में, तो लेंस के पीछे एक लेयर होता है, एक परत होती है, वो कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद वो परत फिर से सफ़ेद होने लगती है। तो परत को सिर्फ ओपीडी बेसिस पे लेज़र करके उसको क्लियर किया जाता है, ये एक कॉमन कारण है। और दूसरा कारण है जैसे उम्र बढ़ती है और अगर वो पेशेंट को या तो डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, तो उनकी आंखों का जो पर्दा है, जो रेटिना बोलते हैं, वो सूखने लगता है। तो वो एज रिलेटेड चेंजेस बोलते हैं उसको हम लोग। तो वो भी IFD टेक्नोलॉजी क्या है डॉक्टर? तो वो लेसिक के लिए, जैसे मैंने बताया, वो चश्मे का नंबर किसी को निकालना है, तो वो लेज़र जो है वो HD विजन के लिए वो लेज़र है सर। जी सर, आंखों के आपने सारी बातें बताई जी। तो आंखों की सुरक्षा के लिए पहले क्या रखना चाहिए और साल में कितने पहले या साल में कितने बार चेकअप कराना चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं हो? सर यूजुअली हम बताते हैं 20, अगर नंबर नहीं है आपको तो 20 साल की उम्र के बाद वंस अ ईयर चेकअप ज़रूरी है। हम एडवाइस करते हैं अगर आपके पास डायबिटीज़ आपको हुआ है या ब्लड प्रेशर हुआ है तो हर 6 महीने में आंखों का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है सर। जी नमस्ते। मैं ये पूछना चाहूँगी सर कि अभी क्या है, लोगों को सिर्फ ये पता है कि मोतियाबिंद के बाद छोटी छोटी बीमारियां पता है, जी लेकिन कई पीरियड बीमारियां हैं आंखों से रिलेटेड जिनका उनको नॉलेज नहीं, तो वो कैसे नॉलेज उन तक पहुँचे, साथ साथ उसके लिए वो क्या क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं? ग्लोकोमा करके एक कंडीशन होती है जिसे हम काला पानी हिंदी में बोलते हैं हम लोग। तो वो काला पानी के लिए एक तो वो हेरिडेटरी होता है, जैसे फैमिली में किसी मेंबर को, तो अभी उस ज़माने में तो रिकॉर्ड्स नहीं होते थे, उस सुविधा भी नहीं थी वो। आजकल तो हम लोग उसका स्कैन करते हैं, OCT करते हैं, ऑप्टिक नर्व हेड का, पेरीमेट्री करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड्स रहते हैं। तो ये सब अगर फैमिली में किसी को हुआ है अंधत्व, जैसे कुछ जल्दी कम उम्र में हो चुका है, तो उनके फैमिली मेम्बर्स को रेगुलर चेकअप करेंगे तो एक ग्लोकोमा करके कंडीशन है वो हम डायग्नोस कर सकते हैं। और ये जैसे लेसिक सर्जरी किया जाता है लोगों को, जी। सपोज किसी की लेसिक सर्जरी हुआ जी तो उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कि उसका लेसिक किया जाए, और अगर एक बार लेसिक हो गया है तो क्या वो दोबारा उस पर लेसिक सर्जरी अप्लाई किया जा सकता है? तो यूजुअली हम लोग 18 इयर्स की उम्र के बाद लेसिक एडवाइस करते हैं बच्चों में, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है तो नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो अगर एक नंबर स्टेबल हो जाता है, वो एक डेफिनेटली एक कंडीशन है कि उनका नंबर एटलीस्ट पिछले 3 से 6 महीने में स्टेबल रहना चाहिए। एज यूजुअली 18 के ऊपर होती है तो अच्छा होता है। फिर हम लोग कुछ लेसिक के पहले कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे टोपोग्राफी होती है, पैकीमेट्री होती है, उसमें कुछ रीडिंग्स होते हैं जिसके बियॉन्ड हम लोग कर सकते हैं। उसके नीचे अगर रीडिंग है तो सेफ़ नहीं है पेशेंट के लिए, तो हम लोग मना करते हैं और दूसरा ऑप्शन देते हैं, जैसे ICL है, वो जैसे आंखों के अंदर डायरेक्ट लेंस बिठा सकते हैं बिना मोतिया को निकाले। तो अगर लेसिक नहीं हो पाता है तो हम पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं करते, हम उनको दूसरा ऑप्शन देते हैं। तो ICL में भी पॉसिबल है नंबर निकल जाना। और एक बार अगर लेसिक हो गया तो जी। क्या वो सेकंड टाइम लेसिक किया जा सकता है? तो लेसिक हो गया और कॉर्निया अगर फिर से पेशेंट को ज़्यादा नंबर आते हैं और डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, उनको फिर से करवाना है, बट कॉर्निया की थिकनेस जो बची हुई है वो अगर एडिक्वेट है तो हम कर पाएंगे। यस। और ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे लोग बच्चे छोटे जी। स्क्रीनिंग के कारण है या जी। किसी कारण तो क्या ये बच्चों में आँख कमजोरी जेनेटिक भी हो सकता है? जी, तो उसको हम लोग एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे दोनों, हम तो सब दोनों आँखों से ही देखते हैं हमेशा, तो बच्चों को पता नहीं चलता कि उनकी एक आँख वीक है। तो अगर स्कूल में पता चलता है, टीचर बोलती है बहुत आगे आके बच्चा देख रहा है, माँ को पता चलता है कि बहुत आगे आके TV देख रहे हैं घर पे, तो ऐसे बच्चों को उनको रेगुलरली लाके चेक कराना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक ही आँख वीक होती है और दूसरे आँख से दिख रहा है, तो बच्चा बोल नहीं पाता कि मुझे दूसरी आँख से दिख नहीं रहा है। तो रेगुलर चेकअप पे आएंगे तो हम पता कर सकते हैं एम्ब्लायोपिया। तो उसके लिए हमारे पास क्योर-C और बाइनॉक्स, ये 2 प्रकार की जो ट्रीटमेंट है स्क्रीन बेस्ड होती है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो वीक आँख है उसको हम लोग स्टिमुलेट करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बट ये सब चीज़ जब होता है जब बच्चों की उम्र कम होती है और ग्रोइंग एज होती है। एक बार एक सर्टन एज आप क्रॉस कर जाते हो, जैसे 20 साल के बाद अगर कोई बताता है कि एक आँख वीक, हम कोशिश ज़रूर करते हैं बट उसमें सक्सेस के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं फिर ऐसे। जी, थैंक यू। Sir, what will be the tentative screening timing for kids as we are into digital India? I to say only 15 to 30 minutes per day because I prefer they read books. I would love them, like them to read books and do outdoor exercises. If they are free, they have vacation, don't stick to mobile or TV.
साइकिलिंग करो, स्केटिंग करो, आउटडोर गेम्स खेलो बच्चों के साथ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सनलाइट एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देयर वाज अ स्टडी लॉन्ग बैक कि बच्चों में अगर सनलाइट का एक्सपोजर है तो हाँ मतलब आँखों के लिए मतलब उनको नंबर नहीं आते या कम रहते हैं या लिमिट हो जाते हैं. तो माइनस नंबर स्पेशली जो होते हैं उनके लिए वो सनलाइट एक्सपोजर बहुत अच्छा है. आधा 1 घंटा, दिन में 2 घंटा, दैट वुड बी द आइडियल थिंग. Sir, as like digital India is growing and lot of screening time is required by kids, college assignments, or lot of assignments. Frequent breaks, regular eye checkup, keep your eyes wet, keep it moist all the time. बार बार वॉश करते रहो. And is this Drishti Eye Hospital tie up with Mediclaim or we are offering? Yes, very much. Cashless facility. Yes, very much. Almost all the TPAs and everything, whatever the latest requirements are, we are in the process. Already we have lots of tie-ups and we are in the process of having many more tie-ups possible. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you, friends.